Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you all to another session of secretarial practice. Secretarial practice के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. In today's set of discussion, we'll be starting discussing the issue of shares, different methods. In today's discussion, we're starting with the third bit of discussion. Third bit of discussion हम शुरू करने वाले हैं. Third bit of discussion talks about issue of shares to the existing employees of the company. I hope everyone is having the textbook, page number 45, right? Page number 45. Issue of shares to the existing employees of the company. Issue of shares to the existing employees of the company हम discuss कर रहे हैं. Offering the shares to the existing employees of the company. Offering the shares of the company to the existing employees of the company. Hi Anna, right? Now we have seen issue of shares in case of public offer. पब्लिक ऑफर में दो तरीके से शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, आईपीओ एंड एफपीओ. आईपीओ एंड एफपीओ. आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ स्टैंड फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ के बाद हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी. इश्यू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी. In case of issue of shares to the existing members of the company, there are two methods which we learned and understood. That is issue of shares with the help of right issue, issue of the shares with the help of bonus issue. In case of bonus issue, the shares are fully paid and issued free of cost. In today's set of discussion, we are starting offering the shares to existing employees of the company. What do you mean by employee? Raise your hand, those who wish to answer. Tiwari ji, employee यानी क्या? तुम उठो वहां से, वैसा तीनों यहाँ सामने आके बैठो, मेरे आंखों के सामने. तीनों जल्दी आओ, फास्ट, इधर से ऐसे आओ, जल्दी जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो वरना मैं बरस जाऊंगा अब तुम पे. आओ जल्दी आओ, फटाफट आओ जल्दी आओ. होटवानी इधर बैठ, जल्दी आ रहे, टाइम पास मत कर, चल. हाँ बैठ गिरी यहाँ पर, धीरे. Offering shares to the existing employees of the company. Offering the shares to the existing employees of the company. अब हम existing employees को share offer करने की बात करें. We're talking about offering the shares to the existing employees of the company. Starting with the first point, ESOS, ESPS, SARS and sweat equity. ESOS, ESPS, SARS and set equity shares. Employee stock option plan, employee stock purchase scheme. Next is SARS, SARS stock appreciation right scheme, and fourth sweat equity shares. जितने भी आपको मेथड्स दिए गए हैं उन सभी मेथड्स में थोड़ा समझने के लिए इन चार हेडिंग को समझने में थोड़ा तकलीफ जाता है स्टूडेंट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट. रेस्ट आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन ये जो चार मेथड है फॉर इशूइंग द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ये चार पॉइंट थोड़ा समझना मुश्किल है अगर हम ध्यान ना दो. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एज यू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट टुडे, दैट इज ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में हम बात करेंगे. A company can raise funds. A company can raise funds by offering the shares to its existing employees of the company. Company can raise funds by offering the shares to its existing employees of the companies as follows. What are the four methods we have? ESOS, ESPS, SARS and sweat equity shares. ESOS, ESPS, SARS and sweat equity shares. Starting with the first point today, ESOS, employee stock option scheme. Employee stock option scheme. क्या है फुल फॉर्म इसका? Employee stock option scheme. My question was, what do you mean by employee? Raise your hand who wish to answer. Raise your hand those who wish to answer. What do you mean by employee?
एक मिनट, ध्यान दे भाई, ध्यान लगाओ। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, व्हाट डू मीन बाय एम्प्लॉय? पेड सैलरी, बर। The people who work for the company are called as employees of the company. The people who work for the company are called as employee of the company. Now we can't say that the return they get for working for the company is compulsorily salary. So it is to be called as honorarium. क्या शब्द है उसके लिए? Honorarium, or you can call it as a reward which we give for working of the company. So all those people who are working for the company for a reward or an honorarium is called as an employee of the company. The one who employs is called as employer. जो काम पे रखता है वो होता है employer. जो काम पे रखता है वो होता है employer. और जो काम करता है वो कौन होता है? employee. तो समझती बात है, ये मालिकों के लिए स्कीम है या काम करने वाले नौकरों के लिए स्कीम है? जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी करते हैं, जो कंपनी के नौकर है, उन लोगों के लिए जो है ये स्कीम है। हाँ या ना? यस और नो? राइट? माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी? आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी? आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी? हु सेड नो? आई हैड नो साउंड फ्रॉम दिस साइड। पतंगे, कौन बोला नो? नो कौन बोला? Sosang, what's that? तू बोला है? No. Does anybody think that the board of directors are not the employee of the company? If you think so, you are really wrong. The directors of the company are also the employees of the company. Directors, key manager person, managers, they all are the employees of the company. इन सभी लोगों के लिए ये स्कीम है। पब्लिक ऑफर में, in case of IPO and FPO, we were offering the shares to general public. In case of issue of shares to existing members, the newly issued shares were issued to the existing member who are member as defined as per the register of members or beneficial owner as per the record of the depositories. Yes or no? हाँ या ना? But अभी in this case, the shares have been issued. तो शेयर्स किसे इशू किए जाएंगे? शेयर्स किसे इशू किए जाएंगे? टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। हम शेयर्स किसे इशू करने वाले हैं? एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। वी आर गोइंग टू इशू द शेयर्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। हम कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करने वाले हैं। एंड हु विल हैव द राइट टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी? द एम्प्लॉइज विल हैव। इससे पहले वाले केस में क्या था? मेंबर्स हैड द राइट टू बाय द शेयर्स, द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। Now under this particular part, who will be having the right to buy the shares of the company? Employees will have the right to buy the shares of the company. Are we okay and fine? Now first scheme ESOS, इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में इसमें गोता लगाएंगे। Deep knowledge, ESOS, Employee Stock Option Scheme. Under this scheme, permanent employees, directors, officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit to right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. Permanent workers, permanent employees, directors, key managerial person of the company, of the holding company, of the subsidiary company is given a right, is given a अधिकार। सड्डा हक एथे रख, हक दिया है, मुझे हक है। कहाँ गए जीजा जी? जीजा जी नहीं है आज। मुझे हक है, सड्डा हक एथे रख, हक दिया है, हक दिया है, हक दिया है, सड्डा हक एथे रख, हक दिया है। ध्यान दो, हिंदी का इस्तेमाल करें। राइट इज गिवन टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, राइट इज गिवन टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी
to buy the shares of the company at a future date, at a predetermined price, at a predetermined price. एक predetermined price पे फ्यूचर डेट या फ्यूचर तारीख पे एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया जाता है. ESOS encourages the employees as they feel proud to be the owners of the company for which they are working, and the company also benefits as it retain good employees. Now think of the logic and idea as to why does the company need to issue shares of the company to the existing employees. Who are the owners of the company? Employees or the shareholders? Employees or the shareholders? Are the employees the owner of the company? Are the employees the owner of the company? जब आप मालिक नहीं हो, do you think that you will have that the same kind of motivation which the owner has? अब ये क्लास मेरी है, I own this particular classes. I have that motivation to work day and night for this class. Any other person who is working as an employee will not have that much of motivation. जैसे विशाल sir, he's an employee for the classes. He won't have the same amount of motivation which I have for SPC. Yes or no? 99.9 वाले माधव sir भी, he'll have lot of motivation. His partner no, have motivation 50-50. He'll have motivation. Rohit sir, Vishal sir, Deshpande sir, they are working employees for the company. They won't have that much of motivation in working and ensuring that the company grows to a particular limit, because they ultimately know what they are going to get is a fixed reward. कंपनी का अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, क्लास का बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तो उनके रिवॉर्ड में कुछ फर्क नहीं होना है, कुछ मेजर फर्क नहीं हो, फर्क तो होता है कुछ, लेकिन मेजर फर्क नहीं होना है. जितना बेनिफिट ओनर्स लेके जाएंगे क्या उतना बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलने वाला है? नहीं. अल्टीमेटली सच ये है, मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स. भाई क्लास के इसमें मैं हूं, अल्टीमेटली कौन है मालिक? मैं हूं. तो हु इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट्स? आई एम गोइंग टू टेक द एंटायर बेनिफिट. आई एम गोइंग टू टेक द एंटायर बेनिफिट. सो as I am going to take the entire benefit, there is lack of motivation amongst the employees of the company. For that I have to think of something, I have to think of some idea, some schemes for the employees of the company. इसलिए आप देखते हो कि बड़े बड़े कंपनियां जो होते हैं वो एक्स्ट्रा बोनस या फिर एक्स्ट्रा कुछ कमीशन वगैरह अपने जो है एम्प्लॉयज को देते हैं. जैसे जितने सारे कंपनियां होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं, अपने मार्केटिंग या सेल्स टीम को कहते हैं कि भाई तुम्हारी इतनी सैलरी है, इस टारगेट के ऊपर इतना तुम सेल करो, तुम्हें एक्स्ट्रा उसका आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा. सुना तो पता तो होगा ना, जब सेल्स की या ऐसे कोई कंपनियां होती है तो जब कभी मार्केटिंग का या सेल्स का कोई बंदा अपॉइंट किया जाता है, उसे फिक्स सैलरी दिया जाता है, फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जाता है. उसके बाद एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट के अब उसने जितना भी सेल अचीव किया उसके लिए उसको अलग से कमीशन या अलग से बोनस दिया जाता है. तो उसके लिए मोटिवेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करो, क्योंकि उस लिमिट से अगर वो नीचे रहा तो उसे फिक्स सैलरी मिलेगी, और उस लिमिट से अगर वो ऊपर जाता है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलने का मौका मिलेगा. So there is some motivation, there is some motivation. अब ठीक उसी तरह से जब हम कंपनी की बात करते हैं, एम्प्लॉइज आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी. हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स. नाउ डायरेक्टर का ही सोचेंगे, बाकी एम्प्लॉइज को आप समझ लेना, समझ लो बाकी तो, लेकिन समझना जो है वो डायरेक्टर का समझो. डायरेक्टर्स आर द मेन मैनेजर्स ऑफ द कंपनी. दे टेक द डिसीजन ऑफ करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर द कंपनी. ये उनके डिसीजन है जो कंपनी को प्रॉफिट या लॉस देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको ये लगेगा कि इस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मेरे खिसे में नहीं जाना है, तो मोटिवेशन लैक होता है कहीं ना. इसलिए नॉर्मली कंपनी क्या करती है भाई साहब, इसलिए नॉर्मली कंपनी क्या करती है, द कंपनी इश्यूज द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. और जो मार्केट वैल्यू है, क्या उस मार्केट वैल्यू पे शेयर्स इश्यू किए जाएंगे? Or will the shares be issued at a value less than the market value? But obvious, दिन रात आपके लिए वो काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं, और अल्टीमेटली शेयर्स लेने की बात है, शेयर्स दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू पे खरीद लो. ऐसे भरोसा जीतोगे तुम? नहीं. ऐसे ट्रस्ट जीतेंगे हम हमारे एम्प्लॉइज का? नहीं. आप उन्हें अधिकार तो दे रहे हो, लेकिन अधिकार में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. मार्केट वैल्यू से खरीद ले तो वो ना खरीद ले, तुमसे क्यों खरीदे? अगर मार्केट वैल्यू पे ही कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो जो डायरेक्टर है डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट से शेयर्स ना खरीद ले, कंपनी से क्यों खरीदेंगे? ESOP के अंदर, ESOP के अंतर्गत शेयर खरीदने का अधिकार कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय तभी एक्सरसाइज करेगा जब उसका कुछ फायदा है. फायदा ही नहीं है, मार्केट वैल्यू पे ही शेयर्स मिल रहे हैं ESOP में. डू यू रियली थिंक एनी एम्प्लॉय विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स? नो. व्हेन द एम्प्लॉय नोज कि वो दिन रात कंपनी के लिए काम कर रहा है,
उसे पता है कि वो कंपनी को किस तरफ लेके जा रहा है, उसे पता है उसकी कंपनी किस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में जा रही है आगे ग्रोथ है, प्रॉफिट है, ये सारी चीजें उसे पता है, तब जाके उसे भरोसा है कि कंपनी को किस स्केल पे, किस ऊंचाई पे हम आने वाले दिनों में ले जा सकते हैं। तब उस वक्त जो मार्केट वैल्यू शेयर्स की है, उससे कम वैल्यू पे कंपनी शेयर्स अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती है। और जब कम वैल्यू पे शेयर्स ऑफर किए जाते हैं तो एम्प्लॉय को भरोसा आता है कि कंपनी में मेरा भी कुछ एग्जिस्टेंस है। जो ओनर्स है उन्हें हमारी कदर है, और जब एम्प्लॉय को समझता है कि मालिकों को हमारी कदर है, जो ओनर है उसे हमारी कदर है, तो अपना जी जान लगा के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। इट्स नॉट अबाउट द सैलरी, इट्स नॉट अबाउट द पेमेंट। जब देशपांडे सर को लगता है, रोहित सर को लगता है कि उन्हें उतना रिस्पेक्ट मिलता है जितने एक प्रॉपर फैकल्टी को मिलता है, उन्हें वो सारी चीज़ें इंश्योर की जाती है जो एक फैकल्टी के लिए, किसी ओनर के लिए हो, उन्हें जितना अधिकार दिया जाता है जितना एक ओनर का है, तो अपने आप वो मोटिवेशन आता है कि हमारा खुद का क्लास समझ के काम करें। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बात काटना है, ऐसा मत समझना कि रोहित सर है, देशपांडे सर, उनकी बात काटना नहीं। उल्टा मेरी बात काटे तो ठीक है, लेकिन देशपांडे सर की बात कभी नहीं काटना, हमेशा कहता हूँ। तो ये जब ऐसा जेस्चर होता है तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन होता है कि नहीं, आई एम ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल बीइंग द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी से वो काम करते हैं। ये हमारे काम करने का तरीका, मेरे परिवार का काम करने का तरीका। हमारे लिए हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारे हर प्रोग्राम में, हर ओकेजन में मैं मेरे हर एम्प्लॉय का, हर सर्वेंट का पैर छूता हूँ। मेरे लिए कोई ऐसा बड़ा है, पैसे का और पैसे के मोल से कोई बड़ा छोटा नहीं। ये मेरे पिताजी की सिखाने के जो सिखाया मुझे ये है। मेरे लिए कोई रैंक से या पैसे से नहीं, उम्र से बड़ा होता है। और उम्र तो मेरी काफ़ी सारी है, तुम्हें पता है। हाँ, तुरुक। तो भाई जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी, शेयर्स इशू करने के बाद अगर एम्प्लॉय जो है मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर्स खरीदेगा, एक तो उसे पता चलेगा कि कंपनी को अपने पे कुछ ना कुछ तो है, कंपनी को अपने लिए कुछ तो फीलिंग है। कंपनी को जब अपने लिए थोड़ी बहुत फीलिंग है, इसीलिए कंपनी अपनी फीलिंग्स की कदर कर कर, थोड़ी बहुत क्यों ना कदर कर कर जो है अपने को शेयर जो है मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर्स दे रही है। और कंपनी को अपनी कदर ही नहीं होती तो कंपनी ESOS के अंतर्गत शेयर्स तो एम्प्लॉय को देती है और बोलती मार्केट वैल्यू पे खरीद लो, तो तुम्हारी वहां पर कदर समझ में आ जाती। और बेटा जहां कदर नहीं होती वहां कोई कदर नहीं करता, जो कदर करता है वहीं भी कदर होती है ना। तो कदर से समझो कदर, कि नहीं समझे? देखेंगे बाद में कभी कदर। वाह, एक प्रेम कथा। तो ESOS encourages employees as they feel proud to be the owners of the company for which they are working, and company also benefits good returns from the employees. तो जब हम हमारे शेयर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को बेचेंगे, तो कंपनी के डायरेक्टर्स को जब शेयर्स बेचे जाएंगे, उसके बाद the employees after buying the shares under ESOS, they will also become the shareholder. After becoming the shareholders of the company, they will also become the owners of the company. They will be owners of the company as well as they will be working for the company as the employee of the company. ओनर भी और एम्प्लॉय भी, ओनर भी और एम्प्लॉय भी। तो यहाँ पे डबल मोटिवेशन रहेगा। उसे पता है उसी का काम उसी को बतौर ओनर अच्छे रिटर्न देगा, उसी का काम उसे ही बतौर ओनर अच्छे रिटर्न देगा। अगर बतौर एम्प्लॉय वो कहीं चूकता है तो वो बतौर ओनर जो बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं वो मिलेंगे नहीं। तो इसमें कंपनी की चित भी मेरी और पट भी मेरी, शेयर कैपिटल भी रेज हुआ और एम्प्लॉय खुद से मोटिवेटेडली काम भी करेगा। ना उनको मोटिवेशन करवाने की जरूरत है, ना उनको जोर जोर के चिल्ला के पूछने पड़ेगी हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, चिल्लाना नहीं, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाय, how the Josh? So this is what we have under the ESOS. Under the ESOS, the right to buy the shares of the company, the right to buy the shares of the company is given to the existing employees of the company, where the existing employees of the company can buy the shares of the company at a future date. अभी ओके एंड फाइन, समझ में आया सबको? अब इसके प्रोविजंस है। What are the different provisions for issue of shares? What are the different provisions for issue of shares under ESOS? Employee stock option plan के अंदर, स्कीम के अंदर किस हिसाब से कंपनी जो है शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इशू कर सकती है।
फॉलोइंग आर द प्रोविजंस टू ईसॉस, यानी कोई कंपनी को अगर ईसॉस के अंतर्गत, अंडर ईसॉस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इश्यू करने हैं तो उसके क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहां पर दिया गया है, जो बहुत ज्यादा है, जिसका डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।